Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and enjoying good health. In previous lecture, we have discussed about digestive system and respiratory system. In today's lecture, we will discuss about circulatory system or transportation in humans. So I have made these slides from page number 8 to 10 of your textbook. So transportation in humans, okay? We all know that cells are the building blocks of humans. All human beings are composed of cells. ठीक है, हर human being जो है cells का ही बना हुआ है. ठीक है, for the survival of cell, food and oxygen need to be transported to them. अब cells के जिंदा रहने के लिए, उनकी survival के लिए जरूरी है कि food और oxygen भी cells तक पहुंचे. ठीक है, so the system involved in transportation is known as circulatory system. इसलिए वो वाला system जो कि सर्कुलेशन के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है, ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है, उसको हम कह रहे हैं दिस इज द सर्कुलेटरी सिस्टम. देन कम्स द कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. कंपोनेंट्स कौन से हैं? ठीक है, तो देयर आर थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. दीज आर हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन. ठीक है, हार्ट क्या है? पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को होल बॉडी के अंदर पंप करता है. Blood is the circulatory fluid, and the blood vessels are that vessels that are responsible for holding circulatory fluid. ठीक है, उनके अंदर circulatory fluid present होता है. Arteries, veins और capillaries जो हैं ये blood vessels में आ जाती हैं. इनमें circulatory fluid, that means blood, वो present होता है. Then comes the composition of heart. You all know from your childhood that heart is present in the left side of your chest cavity. ठीक है, heart जो है chest cavity की left side के ऊपर present होता है. And heart is enclosed by double membranous sac. This sac is known as pericardium. Heart जिस चीज के अंदर enclose होता है, heart को जिस चीज ने cover किया होता है, उस structure को हम कह रहे हैं this is the pericardium. ठीक है, और pericardium के अंदर एक fluid होता है. That fluid is known as pericardial fluid, and this fluid is responsible for the prevention of overextension of heart. Heart को बहुत ज्यादा ये stretch नहीं होने देता, इससे रोकता है. Muscles of the heart are called cardiac muscles. ठीक है, cardiac हार्ट से रिलेटेड है. कार्डिया का जब भी वर्ड आए, कार्डियक की टर्म जब भी यूज हो, that mean it is related to the heart. तो muscles of the heart are known as cardiac muscles. और हार्ट जो है ना वो हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होता, इनवॉलंटरी तौर पे वो काम करता है. ठीक है, मतलब कोई ऐसी चीजें होती हैं जो हम चाहते हैं तो करते हैं, जो नहीं चाहते हैं तो नहीं करते हैं. लेकिन जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है, जो हार्ट बीट है, ये ऐसी चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, जो ह्यूमंस के किसी भी ऑर्गेनिज्म के अपने कंट्रोल में नहीं होती. तो हार्ट जो है वो इनवॉलंटरली काम करता है. दे आर द फोर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट. ठीक है, और उन फोर चैम्बर्स को कहते हैं एट्रिया और वेंट्रिकल्स. The two chambers are the atria and the two are the ventricles. Ventricles are thicker than the atria. ठीक है, I'll give you the reason after completion of our lecture. In heart, deoxygenated blood is on the right side. Heart के अंदर जो deoxygenated blood होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, वो right side पे होता है. And oxygenated blood is on the left side. और वो वाला blood जो ऑक्सीजन कंटेन करता है, वो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है. अब हार्ट के अंदर वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं जो कि बैकफ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करती हैं. ठीक है, हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ हार्ट. दीज आर द राइट एट्रियम, दिस वन एंड दिस वन, एंड these are the ventricles, this and this. The upper two chambers are known as atrium and lower two chambers are known as ventricle. So here in the right atrium and right ventricle, deoxygenated blood is present that will go to lungs for oxygenation, and in the left cavity, right atrium and left atrium and left ventricles are present, and in these chamber, left atrium and left ventricle, oxygenated blood is present. ठीक है, यहाँ पे valves present है. Here you can see these structures, these are known as valves. These valves are responsible for the prevention of backflow. ये जो valves होती है ना, ये blood को यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पे नहीं आने देती, बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं. So now we will discuss circulation of blood. So the deoxygenated blood from the whole body is collected into the right atrium from inferior and superior vena cava. ये दो veins है बड़ी. ठीक है, एक superior और एक inferior. यहाँ से आता है blood right atrium में. राइट एट्रियम के अंदर जिस टाइम पे ब्लड बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाता है और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है ताकि ऑक्सीजनेशन हो सके.
फिर ऑक्सीजन लेने के बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है, ठीक है। ब्लड जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आएगा तो लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में चला जाएगा, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो एओर्टा में जाएगा, ये एओर्टा है, ठीक है। अब यहाँ पे जब ब्लड जाएगा तो यहाँ से ब्लड पूरी की पूरी बॉडी को ट्रांसफर हो जाएगा, पंप हो जाएगा। So left ventricle is responsible for the pumping of blood to the whole body through aorta. So that's why left ventricle is thicker. Then comes the blood vessels. There are 3 blood vessels. These are arteries, veins, and capillaries. Arteries are the blood vessels which carry blood away from the heart. Arteries जो है ना वो blood को heart से दूर लेके जाती हैं, ठीक है। All arteries carry oxygenated blood except pulmonary artery. हर आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन एक पल्मोनरी आर्टरी ऐसी है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही होती है ताकि उस ब्लड में ऑक्सीजन ऐड हो सके। द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज आर थिक। देन कम्स द वेन्स। वेन्स ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाती हैं, दैट कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। हर वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्यों? क्योंकि वो लंग से ब्लड लेके हार्ट में आ रही होती है। द वॉल्स ऑफ द वेन इज थिन। हियर यू कैन सी दैट दिस वन इज पल्मोनरी आर्टरी एंड दिस वन इज पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो वो हार्ट की तरफ लेके जाती है, जबकि पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि वो लंग से हार्ट में लेके आती है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को हार्ट से लंग्स में लेके जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से वापस हार्ट में लेके आती है। देन द लास्ट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स दैट आर कैपिलरीज। दे आर 1 cell thick blood vessels, ठीक है। इनकी थिकनेस बहुत ज्यादा कम होती है आर्टरीज और वेन्स की निस्बत। देयर फंक्शन इज टू एक्सचेंज मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। वो क्या करती हैं? ब्लड और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करवा रही होती हैं, और कैपिलरीज इतनी स्मॉल होती हैं कि हर बॉडी पार्ट तक, हर टिश्यू तक वो पहुंच सकती हैं। दीज आर द आर्टरीज, दीज आर द वेन्स, ओके, एंड दीज आर द कैपिलरीज। हियर यू कैन सी दैट कि ये जो है बहुत ज्यादा थिन है, ठीक है, तो इसीलिए ये हर टिश्यू के अंदर पेनिट्रेट कर सकती हैं और वहां से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करवा सकती हैं। देन कम्स कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड के 2 पार्ट्स होते हैं, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा, ठीक है। तो ब्लड सेल्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या है? दे आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ठीक है। ये ऑक्सीजन को लेके बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, ठीक है। देन कम्स द व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स डील विद द बॉडी डिफेंस। अगर कोई भी माइक्रोब, कोई भी ऐसा छोटा सा ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऐसा पैथोजन जो कि डिजीज कॉज करता है, वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो है ना, ये आर्मी के तौर पे काम करते हैं। ये स्टिमुलेट हो जाते हैं और उससे लड़ते हैं और आपको बीमार नहीं होने देते हैं, ठीक है। अगर आप बीमार हो जाते हो तो भी जो है व्हाइट ब्लड सेल्स ही आपको इस तरह से करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको ठीक करना चाहते होते हैं। तो मतलब व्हाइट ब्लड सेल बॉडी डिफेंस के तौर पे काम करते हैं, बॉडी की डिफेंस कर रहे होते हैं। दे एक्ट लाइक एन आर्मी। देन कम्स द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है। कोई अगर जख्म आ जाए, ठीक है, वहां से खून बहना शुरू हो जाए, तो खून रुकता किस वजह से है? खून जम कैसे जाता है? प्लेटलेट्स की वजह से। अगर प्लेटलेट्स ना हो तो थोड़ा सा भी अगर आपको स्क्रैच पड़े, ठीक है, तो ब्लड वहां से निकलना शुरू हो जाए, तो ब्लड तो रुके ही नहीं। तो प्लेटलेट्स जो है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। देन कम्स डिसऑर्डर्स अफेक्टेड बाय डाइट। अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर कुछ डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं जो डाइट की वजह से अफेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मायोकार्डियल इंफार्क्शन इज कॉमनली नोन एज हार्ट अटैक। हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं, ठीक है। उसकी साइंटिफिक टर्म है हार्ट अटैक की मायोकार्डियल इंफार्क्शन। हार्ट के मसल्स जो है उनके अंदर खराबी आ गई है। तो ये होता किस वजह से है? कोलेस्ट्रोल जो है, ठीक है, जो ऑयल है, फैट है,
वो आपकी आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और वो वहां डिपॉजिट होके ब्लॉकेज कर देता है। ठीक है, जिस तरह पानी का कोई भी पाइप है, उसके अंदर कोई भी स्टोन आ गया है तो ब्लॉकेज हो जाएगी ना, पानी आगे मूव नहीं कर सकेगा। इसी तरह आर्टरीज जो है ये भी एक ऐसा वेजल्स है, ऐसी वेजल्स है, ऐसा पाइप है जिसके अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल की, फैट की डेपोजिशन होनी शुरू हो जाएगी तो वो ब्लॉक हो जाएंगी। अब जब ब्लॉक हो जाएंगी तो हार्ट को पंप करने के लिए ज्यादा स्ट्रेस देना पड़ेगा, और जब वो ज्यादा स्ट्रेस देगा तो उसके जो टिश्यूज हैं वो काम करना बंद कर देंगे, तो उसको कहते हैं कि ये हार्ट अटैक है। ठीक है, अब हार्ट अटैक से कैसे बचा जा सकता है? बाय प्रिवेंटेड, इट इज प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग कोलेस्ट्रॉल इन फूड। आप कोलेस्ट्रॉल का इनटेक अपने फूड के अंदर कम कर दें। ठीक है, then comes the hypertension. Hypertension is the condition of high blood pressure. High blood pressure की ये condition है, और अगर हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा टाइम के लिए रहे तो उसकी वजह से ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं, और ब्लड वेसल्स डैमेज होने की वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो हाइपरटेंशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इट कैन बी कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ गुड डाइट, अच्छी डाइट लेके। जैसे कि ऐसे फूड खाएं जिसके अंदर फैट की अमाउंट कम हो, फ्रूट्स ज्यादा लेने चाहिए, वेजिटेबल ज्यादा लेने चाहिए, जो ग्रेन्स हैं, ठीक है, ये गंदम, चना, दालें वगैरह, तो ये ज्यादा अपनी डाइट में लेनी चाहिए। और ऐसा फूड जिसके अंदर फाइबर्स की अमाउंट ज्यादा हो उसको डाइट में लेना चाहिए, ताकि आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो सके और कोलेस्ट्रोल कम हो, जिसकी वजह से आर्टरीज वगैरह के अंदर कोलेस्ट्रोल की, फैट की डेपोजिशन ना हो। ठीक है, इस तरह आप इन डिजीजेस से बच सकते हैं। So that's all about today's lecture. You have to do your work in your notebook. I'll provide you the attachment with the lecture. Also, you have to learn this work. Okay, students, that's all. Allah Hafiz.